ٹھٹھا میں دریا کی بے رحم موجیں 7 زندگیاں نکل گئے۔ دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 7 بچے ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی۔ ہری پور میں 2 مختلف ٹریفک حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔ سندھ کے شہر نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر مسافر کوچ دکان میں گھسنے کے باعث ماں اور 2 بیٹیاں جان کی بازی ہار گئی۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کئی شہروں میں کارروائیاں، دکانیں سیل، بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ پنجاب میں تمام پارکس کھل گئے۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں تفریح گاہوں کا رخ کر لیا۔ سماجی فاصلہ برقرار، ماسک اور سینیٹائزرز کا بھی استعمال۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر خیبر پختونخوا حکومت کا ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 5 بڑے بس سٹینڈ سمیت متعدد چھوٹے اسٹیشن سیل، لاکھوں کے جرمانے آئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں 5ویں روز بھی پیٹرول نایاب۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر پھرنے پر مجبور۔ ملک بھر میں منافع خور سرگرم، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب۔ یہ بہت ہی ایک اچھا ایسا اقدام ہے، اس کی تعریف کی جائے کم ہے، اور دوسروں کو بھی سچ نیوز کے اس اقدام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں، اور کیونکہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو بھی ان سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سچ ٹی وی کی کاوش، نیکی کی ٹوکری، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی جانب سے بھرپور پذیرائی، اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ بہاولپور کے شہر مبارک پور میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ قصور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کی یلغار، فصلیں تباہ، درختوں سے پتوں کا صفایا، کسانوں کا مالی نقصان، سال بھر کی محنت ضائع۔ آئے روز آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے ساہیوال کے علاقے کمیر شریف میں آم کے باغات متاثر، باغبان پریشان۔ اوکاڑا میں محکمہ اینٹی کرپشن کا لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، 59 کنال زمین واگزار کروا لی، واگزار کروائی گئی زمین محکمہ ریونیو کے سپرد کر دی گئی۔ لیا کے علاقے پیر جوگی پہاڑ پور میں انگور کے باغات پک کر تیار، خریدار نہ ہونے کے باعث کاشتکار پریشان۔ السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا گو ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، الہی آمین۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھا میں دریا کی بے رحم موجیں 7 زندگیاں نگل گئی۔ دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 7 بچے ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ ننھی جانیں ہی چلی گئیں۔ ٹھٹھا میں جھرک کے قریب دریائے سندھ میں گرمی سے بچنے کے لیے بچے دریا میں اترے تو ظالم لہروں نے ان کی زندگیاں ہی نگل لی۔ دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 7 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جھرک کے گاؤں دائم کے رہائشی بچے گرمی کے باعث نہا رہے تھے کہ دریا کی بے رحم موجیں 7 زندگیاں نگل گئی۔ ڈوبنے والے بچوں میں کونج، عامر، بے نظیر،
रफीक रहीम और बशीरा शामिल हैं। जान बहक बच्चों में 5 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। दिलगीर वाक़े पर फिजा सोगवार है तो हर आंख अश्कबार है। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। हरिपुर में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध के शहर नौशहर फेरोज में मां और 2 बेटियां जान बहक हो गईं। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। हरिपुर में हजारा मोटरवे पर वैन उलटने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जान बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरिपुर में खानपुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और सुजुकी में तसादुम से 2 अफराद जान बहक जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और जान बहक अफराद को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सूबा सिंध के शहर नौशहर फिरोज में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच दुकान में घुसने के बायस मां और 2 बेटियां जान बहक हो गयीं। जान बहक खातून और बच्चियों का ताल्लुक शिकारपुर से है। हादसे में मुतादिद मुसाफिर जख्मी भी हुए। जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में कोरोना तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। मरीजों की तादाद में इजाफा, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद आवाम और ताजरों की जानब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस वजह से परेशानियां बढ़ने लगी और अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। बैनुल मज़हब अमन कमेटी पाकिस्तान की जानब से कोरोना से बचाव के हवाले से हंगामी मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें मुश्ताक अहमद कम्बो को चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान नामजद कर दिया गया और कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर, मास्क, सैनिटाइजर और मुस्तक अफराद में राशन तकसीम के अमल को तेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुल्क में तमाम मज़हब के उलमा इकराम से इस्तदा की गई है कि अवाम को कोरोना के हवाले से संजीदा रवैया अपनाने के हवाले से काम किया जाए। कोरोना का ये जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, ये तो हमारी कौम की जो ना लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये लोग ना रश वाली जगह पर जाने से बाज आते हैं, ना ही परहेज करते हैं, ना जो इनको तदाबीर बताई गई हैं एहतियाती उन पर अमल करते हैं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं जत्थों के जत्थे जाते हैं। दूसरा जो आज मुझे नोटिफिकेशन मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब से पाकिस्तान का चीफ कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया गया हूँ। ऐसे आदमी को चुनना जिसका रिकॉर्ड और जिसका काम बहुत भरपूर है, मुश्ताक अहमद कम्बो साहब हर आदमी के साथ प्यार, मोहब्बत, रवादारी से पेश आता है। उनकी खिदमात के पेश नज़र, उनके काम के पेश नज़र हमने ये फैसला किया कि उनको ही चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान बनाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुश्ताक अहमद कम्बो साहब को पाकिस्तान बैनुल मज़हब अमन कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर बनने पर दिल की थाक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोगों को आगाही मुहिम भी जारी रखी, लोगों को मास्क भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए और उसके साथ साथ हमने मुस्तकीन में राशन तकसीम किया गया। कोरोना को शिकस्त देने के लिए अवाम को खुद संजीदगी का मुजाहरा करना होगा ताकि इस मूजी वायरस को शिकस्त दी जा सके। अब खिलाफ वर्जियां नहीं चलेंगी। जेहलम में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और ताजर बरादरी के गैर संजीदा रवैये को देखते हुए जिला इंतजामिया ने मेन बाजार की मुतादिद दुकानें सील कर दी। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। अब खिलाफ वर्जियां नहीं चलेंगी। जेहलम में कोरोना वायरस से मुतासरीन की बढ़ती तादाद और जेहलम की ताजर बरादरी के गैर संजीदा रवैये को देखते हुए जेहलम की जिला इंतजामिया इन एक्शन। मेन बाजार की मुतअद्दिद दुकानें SOPs की खिलाफ वर्जी पे सील कर दी गयी। हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी को जेहलम के ताजरों ने न संजीदा लिया, न SOPs पे अमल और न ही मास्क और समाजी फासले की पाबंदी। मुतअद्दिद दफा इंतजामिया की वार्निंग को नजरअंदाज करते ताजर और दुकानदारों की शामत आ गई। DC जेहलम के हुक्म पे तहसीलदार ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जेहलम के सबसे बड़े मेन बाजार में ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया। तहसीलदार का कहना था कि जिन दुकानों को सील किया गया है उनके दुकानदारों के खिलाफ FIRs का भी इंदराज किया जाएगा। उनका कहना था कि जेहलम में तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, मगर ना तो शहरी SOPs की पासदारी कर रहे हैं और ना ही ताजर इंतजामिया से ताउन कर रहे हैं। अब ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। पहाड़ी में कोरोना केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गईं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर बड़ी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को बंद करवाया जा रहा है, जबकि कोरोना से बचाव और SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है।
लेकिन बिहारी में अमली तौर पर कोरोना की रोकथाम के लिए कोई भी इकदामात नहीं किए जा रहे। सब्जी और फ्रूट मंडी में लाखों रुपए की लागत से नस्ब किया गया वॉक थ्रू गेट भी नाकारा हो गया, जिससे मोहलिक वबा मजीद फैलने का खदशा है। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम में SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला ने अब्दुल हकीम का दौरा किया और मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला ने अपनी टीम के हमरा अब्दुल हकीम समेत शहर भर का गश्त किया और जनरल स्टोर मालिकान, बेकर्स मालिकान और दीगर दुकानदारों को 55,000 रुपए मालियत के जुर्माने किए। उनका कहना था कि अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानदारों को SOPs पर अमल का भी सख्ती से पाबंद किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अब्दुल हकीम की आवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे, पाकिस्तान और खुद को महफूज बनाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद टोबा टेक्सिंग में पेट्रोल का बहरान संगीन सूरत अख्तियार कर गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखिए सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में ऐलान के बाद शहर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हैं। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए पेट्रोल पंपों का रुख करते दिखाई देते हैं, जहां पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल की किल्लत के बायस ट्रांसपोर्टर और टैक्सी ड्राइवर्स का कारोबार बंद होकर रह गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले लॉकडाउन की वजह से परेशान थे, अब पेट्रोल न मिलने की वजह से कारोबार बंद करना पड़ रहा है। रेंट की गाड़ी हम चला रहे हैं, हम इतना परेशान है, कभी कभार हमें सवारी मिलती है, लॉकडाउन की वजह से हमें सवारी नहीं मिल रही है। हम क्या करें, अभी हमें इतनी परेशानी, इतनी किल्लत उठानी पड़ रही है। देखें हमारी गाड़ी खड़ी है और लाइन में हमें लगे पेट्रोल मिल रहा है, वो भी 160 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में पेट्रोल की किल्लत को फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटदू में पेट्रोल 5वें रोज भी नायाब है। पेट्रोल न मिलने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट। हुकूमत का आवाम को दिया गया रिलीफ शहरियों के किसी काम न आया। कोटदू पेट्रोल 5वें रोज भी नायाब, पेट्रोल पंप्स ड्राई हो गए। पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से कारोबारी तबका और शहरी शदीद परेशान हैं। शहर के बड़े पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से शहरियों का हजूम लगा हुआ है। एल डिपो माफिया की मिली भगत से पेट्रोल एजेंसी माफिया ब्लैक पर पेट्रोल फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना था सस्ता पेट्रोल मिलने से भी गया। 5वें रोज से पेट्रोल ना मिलने पर बहुत से काम रुक गए। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी शदीद दुश्वारी है। पेट्रोल की वजह से इतने परेशान और अपसेट हो रहे हैं। बच्चे अगर बीमार हैं तो हम उसकी दवाई लेने को नहीं जा सकते, इतनी परेशानी है। पेट्रोल मिल रहा भी है तो ब्लैक पे मिल रहा है हमें। अब हम कहाँ जाए, गरीब आवाम। हम आप जो बड़े रहनुमा हैं हमारे, तो आपका हक बनता है कि हमारे लिए कोई फैसिलिटी अदा करें। शहरियों का मजीद कहना था पेट्रोल मौजूद है, पेट्रोल माफिया ने खुद सप्लाई बंद कर रखी है। दूसरी जानिब पेट्रोल मालकान का कहना था पेट्रोल मिल नहीं रहा, कारखाने पेट्रोल दें तो सप्लाई बहाल हो जाएगी। पेट्रोल ना मिलने पर कारोबारी हजरात और शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मकामी इंतजामिया ब्लैक पर पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसहाक, सच न्यूज, कोटदू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद खैरपुर में पेट्रोल नायाब हो गया। मालिकान ने पेट्रोल पंप सील कर दिए, जबकि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों पर महंगे दामों पेट्रोल की फरोख्त जारी है। अली गौहर की रिपोर्ट। पेट्रोलियम के रेट्स में कमी के बाद पंप्स पर पेट्रोल अदम दस्तयाब। पंप मालिकान ने शहर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। पेट्रोल न मिलने के बाद शहरी सख्त परेशानी का शिकार। डीसी खैरपुर समेत इंतजामिया अमलदार सूरत हाल से लाअमल। ये पेट्रोल पंप है ना जो सील लगा पड़ा है, हम परेशान है, कहाँ जाए हम। तो हुकूमत को गुजारिश है कि ये पंप खोला जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद आरिफ वाला शहर में किरायों में कमी न हो सकी। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से शहरियों से जायद किराए वसूल किए जा रहे हैं। जावेद रजा भुट्टो की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी तो कर दी, मगर इसके समरात गरीब आवाम तक न पहुँच सके। इंतजामिया की गैर संजीदगी के बायस आरीवाला में अंदरूनी शहर चलने वाले रिक्शों के किरायाजात कम न हो सके। पेट्रोल की कीमत में 42 रुपए फी लीटर नुमाया कमी के बावजूद शहरियों से जायद किराया वसूल किया जा रहा है। इस अंधेर नगरी पर शहरी फट पड़े। गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि
गरीब आवाम के बारे में सोचे, ताकि 117 रुपये पेट्रोल था तब भी रिक्शों का या ट्रांसपोर्ट का किराया वही था। आज अगर 70 रुपये पेट्रोल बिक रहा है तो किराया वही है। इन गरीबों के बारे में सोचे ताकि इंतजामिया कुछ ख्याल कर ले गरीब के लिए। 117 रुपये से उदो भी किराया है, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। शहरियों से जायद किराया की वसूली पर इंतजामिया भी खामोश है, जबकि शहरी कहते हैं अगर 1 रुपया पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर फौरन किराया बढ़ा देते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेकर किरायों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मरी में जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मरी जाहिद हुसैन ने मरी के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब्जी और फ्रूट के इजाफी रेट वसूल करने वाले दुकानदारों को मौका पर भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तहसील भर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशियाए खुरनोश फरोख्त की जाएं, जायद कीमत वसूल करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्क भर में महंगाई की लहर ने पेशावर के शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। पेशावर के शहरियों ने क्या कहा, उनकी जबानी सुन लेते हैं। फारसी का एक लफ्ज है शहर नापुरसान, ठीक है जी। शहर नापुरसान है, कोई पूछने वाला नहीं है, दालें महंगी हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो गरीब लोग हैं वो तो आसानी से कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि एक सब्जी जो है, सब्जी भी महंगाई ऊंची चल रही है और ये है कि अब कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। में रोज दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। जो दालें हैं, चीनी है, चावल हैं, इनमें तो दिन पर दिन इजाफे हो रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन चीज़ों में कमी आए। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो तब ये मुल्क के हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे। जब सजाएं हमारे मुल्क में नहीं है, एक तरफ चले जाते हैं अदालत तो दूसरे दिन बाहर आ जाते हैं, वही लोग सड़कों पर दोबारा फिरते हैं और वोट मांगते हैं कि भाई हम तो यही करेंगे। यही दावे हम सुन रहे हैं, सुन के सिर्फ सुन ही रहे, आज तक वो दावे पक्के कभी नहीं हुए। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए जहां एक तरफ दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चिन्योट के शहरियों के लिए बनाए गए पब्लिक पार्क के सामने लगे गंदगी के ढेर वबाई अमराज का सबब बनने लगे हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए जहां एक तरफ आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरियों को साफ और ताजा आबो हवा फराहम करने वाले चिन्योट के पब्लिक पार्क के सामने कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर मुकामी इंतजामिया की आंखों से उजल हैं। पब्लिक पार्क के सामने पड़े गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर शहरियों में मुख्तलिफ वबाई अमराज का सबब बन रहे हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से पब्लिक पार्क खोलने का तो फैसला किया गया है, ताहम चिन्योट के पब्लिक पार्क की दीवारों के सामने और गेट पर पड़े गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहे हैं, बल्कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज़िली इंतजामिया सिर्फ कागजों में सब अच्छा है की रिपोर्ट देने में मसरूफ है। जरूरत इस अमर की है कि बंद कमरों में इजलास और रैलियों के फोटो सेशन से निकलकर हकीकी तौर पर माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर इन पार्क के करीब पड़े गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर को ठिकाने लगाया जाए, ताकि हुकूमत पंजाब की तरफ से खोले गए पार्क शहरियों में साफ सुथरी और ताजा आबो हवा फराहम कर सकें। कैमरामैन MM तबस्सम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इलाके कंजवानी की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। आतिफ इकबाल की रिपोर्ट। दिल्ली शहर इक़्तिदार से निकल कर कंजवानी तक न पहुंच सकी। कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार, जबकि 2 साल कबल 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला कारपेट रोड के इर्द गिर्द भी गहरे गड्ढे पड़ गए, जिसके बायस हादसात मामूल बन गए, जबकि इंतजामिया ने भी चुप साध ली। लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह होने लगी। मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों की जानिब से शदीद तशवीश का इज़हार अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कंजवानी की मेन और आम शारात के साथ मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। कंजवानी को मिलाने वाली मेन और वाहिद शाहराह बराह रास्ता कंजवानी, मामू कांजन, किलियांवाला, कासम चौक, रावी रोड, पीरल साइंस से चक नंबर 457 तक, मंगनावाला से चालोदरा तक की शाहरात में पड़े गहरे गड्ढों से हादसात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं।
تو وہیں ملامت سے وابستہ طبقہ اپنے دفاتر طالب علموں کے ساتھ شہری بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس کے خلاف شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ارباب اختیار سے بلا تفریق تحصیل کی رابطہ سڑکوں کے ساتھ عام شہرات کی دوبارہ حالت زار درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد عاطف اقبال، نمائندہ سچ نیوز کنجوانی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے ضلع قصور کی عوام کے لیے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو موجودہ انتظامیہ فعال نہ رکھ سکی۔ چودھری وسیم کی رپورٹ۔ قصور میں 35 لاکھ سے زائد آبادی کے لیے ضلع بھر میں 45 کے قریب واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے، جن میں سے اکثر عدم توجہی کی بنا پر بند پڑے ہیں۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے ان پلانٹس میں لگی مشینریز بھی غائب ہو چکی ہے۔ کئی جگہ پر صاف پینے کی فراہمی کے لیے لگائی گئی واٹر ٹربائنیں بھی غائب کر لی گئی ہیں۔ پلانٹس میں لگی ٹینکیوں میں زنگ آ چکا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ گڑیا میں جو پلاٹ ہے اس پہ کروڑوں روپے انویسٹ ہوئے ہیں اور اس کے اعلیٰ کام سے ہم نے کتنی بار بات کی ہے، لیکن اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا، نہ اس کا آج تک کوئی ایکشن ہوا ہے۔ یہ سارے کے ساری جو ہے نا عوام اعلیٰ کام سے یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو 50 بار ہم نے بھی وہ ہے نا کمپلین کی ہے، لیکن اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ قصور کی بے قصور عوام آج بھی گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ واٹر فلٹر پلانٹس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ جو فلٹریشن پلانٹ فنکشنل ہیں ان کے فلٹر تبدیل کیے ہوئے مہینوں گزر گئے۔ البتہ حکومتی خزانے میں فلٹر تبدیلی کا خرچہ ہر مہینے ڈالا جا رہا ہے۔ شہری گندا پانی پی کر مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੂੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਜਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਟੂੜੀ ਪੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ। ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਲ اور تالا لگا ویکھ کے انتظار کر کے شام تک انتظار کر کے پھر واپس چلے جاندے نے۔ پنجاب حکومت عوام کو صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ قصور کی موجودہ انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے قصور کے مکین ان واٹر فلٹر پلانٹ سے زہر آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں، جس سے مہلک بیماریوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ نیوز، قصور۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی غفلت کے باعث 4 سال قبل شروع ہونے والا سیوریج منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اجمل خان کی رپورٹ۔ کوٹ سلطان کا محلہ فاروق اعظم میں مسلم لیگ کے ایم پی اے مار اجاز اچلانہ نے 4 سال قبل سیوریج کا منصوبہ دیا۔ محکمہ پبلک ہیلتھ نے سیوریج کا منصوبے کا آغاز کیا۔ منصوبے کے تحت سیوریج کے 4 ڈسپوزل بنانے کے ساتھ ساتھ پائپ لائن بچھانے اور پختہ کھال بنائے گئے۔ سیوریج ڈالنے کا عمل 70% مکمل ہونے کے بعد ٹھیکیدار کام چھوڑ کر فرار ہو گیا، جس سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج کا ڈسپوزل اوپن ہونے ہر طرف بدبو پھیل رہی ہے، جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پیسے جنہوں نے پبلک ہیلتھ والے خود کھا گئے، نہ کوئی کام کچن نے ناقص ترین یہ کچن نے کام خوب بنا گئے، ننگے چھوڑ گئے، آئے جانے بکریاں بچ جائے ہوئے یہ کو چالو نہیں کیتا، پیسے تمام تر ضائع کر گئے۔ اس وقت علاقے کی ساری پانی کی بدبو ہے اور پانی دی لیکیج کے نال سارا پانی خراب ہو گیا۔ اس وقت بیماریاں پیدا تھی پہن آئے دیہڑے محلے دی بھی ہزاروں کی تعداد بچے بیمار ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا سیوریج فعال نہ ہونے سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ متعدد بار انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ زائرین نے ڈپٹی کمشنر لیا سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سیوریج مکمل کر کے فعال کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل خان دستی، سچ نیوز، کوٹ سلطان لیا۔ خانوال کے علاقے کچا کھو میں نکاسی آب کا سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا۔ عمر حیات کی رپورٹ۔ کچا کھو کا نوائی علاقہ 14 گولاباد ترقی کے اس دور میں آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سے نکاسی آب کا نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ بارش کی چاند بوندیں کیا پڑی کہ گلی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی، جس کے سبب گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، گلیاں زیر آب آ گئی اور نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے
बल्कि मस्जिद को जाने वाले नमाजी इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों का सख्त तहफ़्फ़ुज़ के बाद सांस लेना दुश्वार हो गया। हालिया बारिशों से निपटने के लिए एहतियाती इक़दाम और मेन बरसाती नाले की सफाई सुथराई न होने से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहल इलाका ने एहतजाज करते हुए जिलाई इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन ज़ाहिर हुसैन के साथ उमर अयाद सऊ, सच न्यूज़, कच्चा खूब। रहीम खान के इलाके ठुल हमजा में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। ठुल हमजा में तरक्याती कामों का आगाज करा दिया गया। चंबी चौक ठुल हमजा से डेरा फरीदी तक के लिए 1 करोड़ 12 लाख की ग्रांट से काम मुकम्मल होने के करीब। मोहल्ला न्यू तौहीदाबाद और मोहल्ला डेरा फरीदी के लिए गैस की फराहमी के लिए खुदाई का काम जारी। इस बारे MPA PP 255 सरदार गजनफर अली खान लंगा ने बताया कि हल्का PP 255 की हर यूसीज को 1-1 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई है। मुझे अवाम ने भारी अक्सरियत से कामयाब किया है, तो मेरा भी फर्ज है कि अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखूं और उनके लिए आसानियां पैदा करूं। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच TV, ठुल हमजा। आए रोज की आंधियों और बारिशों की वजह से साहिवाल के इलाके कमेर शरीफ में आम के बागात तबाह होकर रह गए हैं। अफसन सयाल की रिपोर्ट। कमीर शरीफ में आम के बागात के लिहाज से अपनी मिसाल आप कमीर शरीफ में हजारों एकड़ पे आम के बाग पाए जाते हैं। बाग मालकान फल उगते ही व्यापारियों को फरोख्त करके बड़ा मुनाफा कमाते हैं और सौगात के तौर पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजते हैं। कमीर शरीफ में गिरदोनवा में भी कसीर तादाद में आम के बागात पाए जाते हैं। आम के मुख्तलिफ किस्म जिनमें तौसा, लंगड़ा, सिंदड़ी, राबदी शाह मशहूर है। लोग बड़े शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन इसी बारे आए रोज की आंधियां बारिशों की वजह से बागात को नुकसान का सामना। लगा फल जमीन पर गिर गया, जिससे बाग मालकान को लाखों का नुकसान हो चुका। अब आम पर फल ही नहीं तो सौगात और खरीदो फरोख्त किस बात की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां दूसरे कारोबार मुतासिर हुए हैं, वहीं लिया के इलाके पीरजोगी पहाड़पुर में अंगूर के बागात पक कर तैयार हो चुके, लेकिन खरीदार नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद खरल। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां इंसानी जिंदगी और दूसरे कारोबार जिंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं पीरजोगी पहाड़पुर में लाखों रुपए लगाकर अंगूर के बागात लगाने वाला किसान बेशदीद परेशानी में मुब्तला नजर आता है। दिन रात मेहनत करके लाखों रुपए लगाकर अंगूर के फल को तैयार करने में मसरूफ नजर आने वाला काश्तकार आज फल तैयार होने पर परेशान हाल नजर आता है, क्योंकि अंगूर का फल तैयार हो चुका लेकिन इसका खरीदार ताहाल नजर नहीं आता, क्योंकि लॉकडाउन में कारोबार जिंदगी न होने की वजह से ताजर भी मंजर आम से गायब है। अब हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है कि सारा साल मेहनत करने वाले किसान की भरपूर मामनत करे, ताकि किसान मुआशी तौर पर कमजोर न हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसको अपनी मेहनत का फल मिल सके। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीरजोगी पहाड़पुर, लिया। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में कमी के बायस दरामदात में इजाफा होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद रफी। चंद साल पहले पाकिस्तान कपास पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर आता था। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान 20 से 25 लाख गांठ बरामद करता था, लेकिन हालिया बरसों में पाकिस्तान में कपास की पैदावार में नुमायां कमी आई है, जिसकी वजह से बरामदों के अपनी कपास की जरूरियात पूरी करने के लिए 45 से 50 लाख गांठ बरामद करना पड़ती है। माहिरीन का कहना है कि इसकी कपास में कमी की कई वजूहात हैं, जिसमें कपास के ज़ेरे काश रकबे में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का फुकदान, आला मियारी बीज, अद्वियात और खादों की फराहमी में मुश्किलात, मौसमी हालात, बीमारियों के हमले और हुकूमती इदारों की अदम दिलचस्पी कपास की पैदावार में कमी की वजह बन रही है और हालिया टिड्डी दल के हमले ने इसको मजीद नुकसान पहुँचाया। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने कोई मौसर इकदाम न किए तो इसकी पैदावार में मजीद कमी आएगी। इनका मजीद भी कहना था कि हुकूमत ने कपास की काश को तरजीहात से निकाल दिया है और इसकी जगह गन्ने ने ले लिया है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रफीक, सच न्यूज़, मियांवाली। लिया की तहसील चौबारा में किसान गंदम चोरी करने पर अहले इलाका का सरापा एहतजाज बन गए। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया की तहसील चौबारा के नवा इलाका चक नंबर 409 टिड्डिये में गरीब किसान की साल भर की जमा पूंजी 1,50,000 रुपए की गंदम मुबैना तौर पर चोरी हुई। मुतस्सरीन का अहले इलाका कैमरा 10 दिन गुजर जाने के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने पर एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुतस्सरीन और अहले इलाका का कहना था, चोरी हो गई है, सारी कणक चुकी गई है, 2 बार गान कढ़ावन अगुना नहीं कढ़ान दी थी। ट्रैक्टर छड़ा देते ने, बंदे छड़ा देते ने, मेरी कोई सुनी नहीं गई। सारा इंसाफ किया जाए जी, मेरा हक हासिल है, मैनू हक ला के दो।
मैं गरीब बंदा, मेरी कोई सुनो, मेहरबानी करो। 10 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਥਾਜ ਨੇ बेचारे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया हसन इकबाल के रब्ता करने पर उनका कहना था डीएसपी चौबारा ने इस मामले की इंक्वायरी की, जिसमें मुद्दई के इल्जामात गलत पाए गए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। मुल्तान में मुतवक्के सैलाब के पेश नजर दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम मुतवक्के सैलाब के पेश नजर सैलाब के दौरान किए जाने वाले हिफाजती इकदामात बारे फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। दरियाए चनाब पर शेरशाह के मकाम पर की जाने वाली इन फर्जी मशकों में सैलाब में फंसे लोगों की जान बचाने और इन्हें रेस्क्यू करने की प्रैक्टिस की गई। सैलाब मुतासरीन को सैलाब से निकालने का अमली मुजाहिरा भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात गलजई, इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस डॉक्टर कलीमुल्ला और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने मशकों का जायजा लिया। इस मौका पर मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने रेस्क्यूअर्स की महारत को सराहा और सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 की तैयारियों को इत्मीनान बख्श करार दिया। वाज़ेह रहे कि बरसात के मौसम में दरियाए चनाब में तुग़यानी की वजह से मुल्तान और गिरदो नवाह में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ जाते हैं और वहाँ के मकीनों को फौरी इमदाद की जरूरत पेश आती है। इस वजह से हर साल रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब के मुतवक्के खतरे के पेश नजर सैलाब में फंसे लोगों के लिए इन फर्जी मशकों का इनेकाद किया जाता है। इस मौका पर रेस्क्यूअर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। दरिया सतलुज में रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। तारिक अली की रिपोर्ट। भारत की मुमकिना आबी दहशत गर्दी के पेश नजर सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू की जानिब से नहर किनारे फर्जी मशकों का मुजाहरा किया गया, जिसमें एहलकारों ने सैलाब ज़दगान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमली नमूना पेश किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतिशाम मजर का कहना है कि मकसद ये था कि फ्लड से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाए और इसके अलावा जो रिस्पांस है उसको चेक किया जाए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन जो है उसको चेक किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हदायत पे आज इस मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ। फर्जी मशकों का मकसद मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए आलात की दुरुस्तगी और एहलकारों की तैयारियों का जायजा लेना है। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। सक्खर में फलों का बादशाह आम मार्केट्स में हर जगह बेचा जा रहा है। सक्खर में भी फलों का बादशाह आम मार्केट में आ गया। बाजारों और मार्केटों में हर जगह आम बिक रहा है। तो जो है ना इस वक्त सिंध की सौगात है, खास है, समझो सरोली आ रहा है इस वक्त, सिंधड़ी है, दुशहरी है, अनवर टोल है और भी वैरायटियाँ भी आएंगी इंशाल्लाह। बहार है, सिंध में बहुत है आम का, सिंदड़ी का और सरोली का है। मीरपुर खास की जो सिंदड़ी होती है वो एक नंबर होती है। इस टाइम खाने के आम ये सिंध का सरोली और सिंदड़ी है। बच्चे और बड़ों की पसंदीदा सौगात आम है, वो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोग मिल्क शेक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर मैंगो बहुत चलता है और हमारा मैंगो भी जो है वो खुश जायका है, ताज़ा बनाते हैं। माहिर तिब का कहना है कि आम ताकत का खजाना है, इसमें हर किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। मौसम गर्मा में आम खाकर जहां मुंह का जायका मीठा हो जाता है, वहीं फलों के बादशाह से जिस्म में खून की कमी भी पूरी होती है। आम का जिक्र हो और बहावलपुर के आम का तज़किरा ना हो, ये नामुमकिन है, क्योंकि बहावलपुर का चौसा और दुशहरी आम मिठास में अपना सानी नहीं रखते। रिपोर्ट कर रहे हैं अजहर नदीम। अगर बात तो फलों की और फलों के बादशाह आम का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता। और खास तौर पर बहावलपुर के आम जो मिठास में अपनी मिसाल आप हैं। बहावलपुर का चौसा आम और दुशहरी आम मिठास में अपना कोई सानी नहीं रखते, इसलिए बहावलपुर का आम लोगों में खास मकबूलियत का हामिल है। गर्मी के मौसम में लोग दूसरे मशरूबात से ज्यादा आम के जूस को पसंद करते हैं। आम बहुत अच्छा आ रहा है, बहावलपुर का आम है और मिल्क शेक वगैरह जो भी बनाया जाएगा बहुत मजेदार बन रहा है और बच्चे खूब पी रहे हैं और अच्छा मियार इसका आ रहा है। दोस्तों के साथ मिल्क शेक पीने आया हूँ, उनकी फरमाइश के मुताबिक यहाँ से मिल्क शेक बहुत अच्छी मिलती है। जूस के अलावा लोग अपने घर वालों के लिए भी आम का फल बहुत पसंद करते हैं और अपने घर वालों के लिए आम लेकर घर जाते हैं। फलों का बादशाह आम मार्केट में आ चुका है। हम अपने घर के लिए आम खरीद रहे हैं, लंगड़ा, चौसा और ये सब नस्लें बहुत ही अच्छी हैं। बहुत मीठा आम है, खासकर बहावलपुर का आम के क्या कहने, बहुत मजेदार आम है। साग बहुत पसंद करता है, बहावलपुर का आम है। ये सिंदरी और दुशहरी, ये लंगड़ा और चौसा
बहुत अच्छा आम है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। भावलपुर का आम बहुत मीठा है, आवाम बहुत पसंद करती है, जिसमें सिंदड़ी आम, लंगड़ा आम और चौसा आम आवाम की मरगूब गज़ा है। लोग अपना और अपने बच्चों के लिए आम बहुत खरीद कर ले जा रहे हैं, क्योंकि अब आम का सीजन है और बहुत मीठा आम आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ अजहर नदीम, सच न्यूज, मिंचनाबाद। पब्लिक सेक्रेटेरिएट खानपुर यूनियन काउंसिल डोमन में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के मसाइल से आगाह किया गया। साकिब अब्बास की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पब्लिक सेक्रेटेरिएट खानपुर यूनियन काउंसिल डुमन में मलिक वसीम करामत की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनियन काउंसिल डुमन के तमाम कस्बात से मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मुख्तलिफ कस्बात से आए हुए अफराद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। मुकीनों का कहना था कि हमने इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए दिए कि हमारे मसाइल हल होंगे, मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। उन्होंने जल्द अज जल्द बल्दियाती निज़ाम लाने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मलिक वसीम करामत का कहना था कि कोरोना वायरस के पेश नजर तरक्याती काम मुतासिर जरूर हुए हैं, मगर आप लोग ना उम्मीद ना हो। हम MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला से राब्ते में हैं और उनको आपके मसाइल से आगाह किया है। जल्द आपके मसाइल हल होंगे। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती और कोरोना वबा से निजात के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद पाकिस्तान रेवोल्यूशन मूवमेंट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जहांजेब अली की रिपोर्ट। हैदराबाद शहर के इलाके कासिमाबाद न्यू वेदत कॉलोनी में पाकिस्तान रिवोल्यूशन मूवमेंट की जानिब से चौथी यौम तासीस का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन हसन रजा ने की। PRM के चेयरमैन हसन रजा ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस और हिफाजती इकदाम के पेश नजर हुकूमती पॉलिसी के तहत SOPs पर अमल दरामद करते हुए आज यौम तासीस सादगी से मनाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत की मजम्मत करते हैं और हम अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म के जरिए भारत को बताना चाहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म बंद करें। आज हमने यौम तासीस था हमारी पार्टी के, हमने बहुत ही सादगी से मनाया इसको कि हम कश्मीर के लिए और अपनी उनके लिए हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। हमारी जो जद्दोजहद है वो बिल्कुल जारी रहेगी और हर फॉर्म पे हम अपनी मुल्क और कौम के लिए जो है वो काम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि PRM में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो रही है और मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके गरीब आवाम से एक वक्त की रोटी भी छीन रही है। आखिर में कोरोना वायरस वबा के खात्मे के लिए और शोधाए कश्मीरियों APS स्कूल के शोधाओं के लिए दुआ भी की गई और मुल्क की सलामती के लिए पाक अफवाज के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन यूसुफ भट्टी के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।